Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, students. Today we will start our lecture 3. Before starting lecture 3, let us revise some previous topics. In lecture 1, we have seen the number system conversion. We have seen caveman system, decimal number system, and binary system, and we see the conversion from one system to another. The procedure of that was the sum of weight method and other repeated division for converting from decimal to binary. Then later on in lecture 2 we have seen some similar to decimal arithmetic. We have seen how we can add, subtract, multiply and divide in binary. We have seen what was the effect when we shift one bit to left and one bit to right. When we shift the binary in binary, when we shift a bit to left, that means the number is multiplied by 2, and when we shift that bit to right, the result will be that the number was divided by 2. Then we have seen what are unsigned numbers, what is the signed numbers, and we have a introduction of 2's complement. We can get 2's complement from one complement form. One complement form was that to invert all the bits of a binary, we can get one's complement form, and then that inverted bit we add 1 to get the 2's complement. Here we have a binary of 13, and its one's complement is 10010. We have done this by converting that 1 to 0, 0 to 1, this 1 to 0, this 1 to 0, and this 0 to 1. We have convert 1 to zeros and zeros to 1s, and then we will get the 1's complement. For 2's complement, we will add plus 1 to that 1 to get the 2's complement of the number. This 2's complement of 13 represents negative 13. Then we will have these examples in the previous lecture. We can add plus 5 plus 2. We will get plus 7. Then plus 5 minus 2. We will get plus 3. This is in sign magnitude. This is the sign magnitude, and this was the 2's complement example. We have seen these examples in the previous lecture, how we can get multiplication, how we can get addition and subtraction in 2's complement. With 2's complement, you have seen that we can get better results. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स देखे थे. हमने मेथड्स पढ़े थे, सम ऑफ वेट्स और रिपीटेड डिवीजन का मेथड पढ़ा था कि कैसे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं. फिर हम लोगों ने देखी थी कि हम कैसे बाइनरी अर्थमेटिक परफॉर्म करते हैं, बेसिक ऑपरेशन जो अर्थमेटिक के प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. और फिर हमने देखा था कि जैसे ही हम एक बिट को शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो ये है कि बाइनरी नंबर जब मल्टीप्लाई बाय 2 का इफेक्ट देगा. ठीक है. और इसी तरह जब हम शिफ्ट राइट करते थे तो वो बाइनरी नंबर डिवाइडेड बाय 2 का रिजल्ट जो बनता है वो नंबर बन रहा था. फिर बिल्कुल एंड में हम लोगों ने देखा था कि अनसाइंड, साइंड और 2's complement नंबर्स को हमने देखा था कि हम इनसे भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमने देखा था कि साइंड अनसाइंड जो नंबर्स है उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, वो 0 टू ऑनवर्ड 2 पावर n जो n नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उस पे आ रहे हैं. जैसे अगर n 3 है तो आप 0 टू 7 तक जा सकते हो, 8 बिट्स. 1 टू 2 पावर n है, 0 टू 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 था साइन नंबर्स के लिए, अनसाइंड नंबर्स के लिए.
और जो साइन मैग्नीट्यूड थी अब उसमें यह था कि 2 रेज टू पावर n -1 और इसी तरह 0 2 रेज टू पावर n -0 नेगेटिव भी, ये इस तरह से आपके पास रेंज आ रही थी। साइन मैग्नीट्यूड में हमने देखा था कि हम -7 to 0 to +7 तक नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 2's कॉम्प्लीमेंट इन 3 बिट्स, ठीक है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट में हमने देखा था कि हम -8 to 0 to +7 तक जा सकते हैं, ठीक है। 0 to +7 तक जा सकते हैं। तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट में एक नंबर ऑफ रेंज, हमारे पास एक रेंज पड़ रही थी, हम -8 को भी 2's कॉम्प्लीमेंट यूज करके 3 बिट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम साइन मैग्नीट्यूड से नहीं कर सकते। हमने देखा था कि 2's कॉम्प्लीमेंट हम लेते कैसे हैं, ठीक है। हमारे पास नंबर है 13 नंबर है, तो 0 1 1 0 1। पहले हम इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट के इस 1 को मुझे 0 लिखना है, इस 0 को 1 लिखना है, अगेन 1 को 0 1 को 0 और 0 को 1। तो ये मेरे पास 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब 1's कॉम्प्लीमेंट को 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इस बाइनरी में हमें +1 ऐड करना पड़ता है। +1 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 1 0 0 1 0 +1। तो +1 ऐड करूंगा, 1 + 0 1, फिर 1 0 0, ठीक है, 1 1 0 0 1। तो ये मेरे पास -13 आ जाएगा। -13 का मतलब ये है कि ये +13 का 2's कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमें यूज नहीं करना पड़ता, हमें ज्यादातर नेगेटिव नंबर्स को देखना पड़ता है। फिर हम लोगों ने एग्जांपल्स देखी थी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की विद 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये मेरे पास 2's कॉम्प्लीमेंट है, ये मेरे पास साइन नंबर्स आ रहे हैं। अब इसमें हम लोगों ने साइन नंबर में कहा था +1, अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट +1 हो तो वो नंबर नेगेटिव होता है, और इसी तरह अगर वो 0 हो तो वो नंबर पॉजिटिव होता है। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मैंने आपको बताया था ये वाली बिट होगी, जो लास्ट, जो सबसे हाईएस्ट बिट होती है वो होगी। अब 4 बिट का सिस्टम है, ठीक है, तो हम 4 बिट का रिजल्ट ही करेंगे। ये कैरी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, कैरी को हम डिस्कार्ड करते हैं। तो इस हिसाब से हम शुरू करते हैं जी। +5 +2 ऐड करें, 1 + 0 1 1 + 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 0 +7, ठीक है। लास्ट बिट 0 आ रही है और ये 7 की बाइनरी है, तो ये +7 इसका मतलब है, ठीक है। +5 -2 करें तो मेरे पास 1 + 0 1 0 + 1 1 1 + 1 0 1, अगेन 1 + 1 0 1। इस 1 को हम डिस्कार्ड कर दें तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो इस केस में आपके पास, अगर मैं इन टर्म्स को देखूं, ठीक है, तो ये मेरे पास 0 0 1 1 लास्ट से, मुझे क्योंकि 4 बिट को देखना है तो मुझे सिग्निफिकेंट बिट मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है, और 0 1 1 आपके पास 3 की बाइनरी होती है, तो इसका मतलब +3, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट केस में आ जाए, यहाँ पे ये मेरे पास 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, ठीक है। -5 -2 1 + 0 हमने ऐड ही करना है, सिंबल जो है वो हमें बता देगा। 1 + 0, सॉरी मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ये 1 - 0 1 आ गया, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 नहीं जाता तो 1 यहाँ बोरो किया तो यहाँ 1 0 आ गया, 1 0 में से 1 गया तो 1 आता है, ठीक है, और ये इधर 1 चला जाएगा और आगे आ जाएगा। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है -7। अगर मैं इसको यहाँ से देखूं 1 0 0 1, ये इस +7 का 2's कॉम्प्लीमेंट है, मींस के 4 बिट के अंदर मेरे पास -7 का रिजल्ट आ रहा है। अब 0 1 1 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट ले, इन्वर्ट करें, 0 0 0 1 आ गया, ठीक है, +1 इसमें ऐड कर दें तो 1 + 0 1 0 0 1, ठीक है। ये अब -7 इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो 1 0 0 1 4 बिट के अंदर मुझे -7 का रिजल्ट बिल्कुल ठीक मिलता है।
और साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाए -5 + 2, तो 1 + 0 1, 1 + 1 0 1, 1 इधर आ जाएगा, 1 आ गया और 1 आ गया, तो 1 1 0 1 -3 है। सॉरी, ये भी जो है मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है। अगर आप 0 0 1 1 का 0 0 1 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट लें तो 0 0 1 1 आ जाएगा, इसमें +1 ऐड कर दें तो 1 + 1 1 0 1 1, तो 1 1 0 1 ये मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आ रहा है -3 में, जो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग इन नंबर्स को टूज कॉम्प्लीमेंट्स की जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो हम साइन मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर करते हैं। +7 के केस में तो आपको बिल्कुल ठीक रिजल्ट मिलेगा, मगर माइनस के केस में यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 0 0 1 जो -7 का टूज कॉम्प्लीमेंट था, इस 1 को हम डिस्कार्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 4 बिट नंबर सिस्टम में है, हमने 5th बिट को नहीं देखना, ठीक है। तो 1 0 0 1 -7 में बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो 0 1 1 जो रिजल्ट आ रहा है साइन मैग्नीट्यूड से अरिथमेटिक से 0 1 1 वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये +7 की बाइनरी है, ठीक है। मैं 4 बिट नंबर सिस्टम में देखूं तो +7 की बाइनरी है, इसमें मतलब ये हुआ कि साइन मैग्नीट्यूड में जब सब्ट्रैक्शन हुई है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की वजह से आपके पास करेक्ट रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों को टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ही यूज करना पड़ा नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसी तरह आगे हम एडिशन की एग्जांपल देख लें, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट विद साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। यहाँ पे आपके पास 0 0 1 1 +3 ठीक है, और +5 -2 अगर आप यहाँ पे करें तो आपके पास यहाँ पे 1 1 1 1, और अगर मैं 4 बिट नंबर सिस्टम में देखूं तो ये मेरे पास -7 के फॉर्म में आएगा। अगर साइन मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो ये -7 की बाइनरी -7 को रिप्रेजेंट करना कर रहा है, जबकि इसका एक्चुअल रिजल्ट +3 आना चाहिए, यानी कि इसको 0 0 1 1 आना चाहिए। इसमें हम लोगों ने +5 -2 को ऐड किया है, ठीक है। -2 को कैसे बनाया है, इसमें यहाँ पे ये -2 2 का टूज कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे ये जो -2 है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है, ठीक है। बाकी 0 1 0 ये 2 की बाइनरी है, 1 0 2 की बाइनरी है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमने 1 किया क्योंकि वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि टूज कॉम्प्लीमेंट से आपको रिजल्ट ठीक मिल रहे हैं, जबकि साइन से आपको रिजल्ट ठीक नहीं मिल रहे। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल -5 + 2 आपके पास -3 आना चाहिए। अगर इन टर्म ऑफ साइन मैग्नीट्यूड देखें तो आपके पास 1 ठीक है, और 1 तो ये -7 के आसपास जा रहा है नंबर, ठीक है। ये नंबर अगर आप कन्वर्ट करोगे तो -7 आएगा, जो कि गलत है, ठीक है। सॉरी, अगर आप इस फॉर्म में देखें, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये भी इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है, +3 और -3 दोनों सेम आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग साइन मैग्नीट्यूड्स को यूज कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेरे पास -5 और -5, ये -5 का साइन नंबर है और ये -5 का टूज कॉम्प्लीमेंट है। टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ जब हमने किया तो मेरे पास बिल्कुल ठीक आया। ये जो है वो -3 का टूज कॉम्प्लीमेंट है, 3 का टूज कॉम्प्लीमेंट है, जो कि -3 बन रहा है, ठीक है। तो साइन की जगह अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करें तो हमारे पास बाइनरी में जो एरर आते हैं वो एरर नहीं आते हैं। रेंज ऑफ नंबर्स हमने देखा था, ठीक है, ये लास्ट टाइम भी हुआ था कि अगर 3 बिट नंबर सिस्टम करें अनसाइन नंबर है तो वो 0 to 7 तक आप उस नंबर्स तक की बाइनरी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। साइन मैग्नीट्यूड में आप 4 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम में हम -7 to +7 तक जा सकते हैं, और टूज कॉम्प्लीमेंट में वही 4 बिट बाइनरी को यूज करके हम -8 to +7 तक जा सकते हैं। रेंज एंड ओवरफ्लो, ये आज हमने देखा था कि ओवरफ्लो क्या होगा। रेंज एक जो हमारे पास रेंज है उससे जब एक नंबर ज्यादा आ जाए तो हम उसको ओवरफ्लो
कहते हैं। अच्छा, अब अगर देखें हमारे पास एक 3 बिट बाइनरी सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें हम 2+7 करें, 2 की बाइनरी आ जाती है 0 0 1 0, सॉरी अगर हम 3 बिट को देखें, और +7 होता है आपके पास 1 1 1। इसका रिजल्ट आएगा 1+0 1, 1+1 0 1, 1+1 अगेन 0 1। 1001 आपके पास 9 की बाइनरी है, मगर हम ये लास्ट वाला नहीं देखते हैं, कह रही है डिस्कार्ड करें, तो 011 सिंपल आपके पास +1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ओवरफ्लो आ रहा है। 9 की बाइनरी हम 3 बिट्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक सर्टेन रेंज होती है नंबर ऑफ बिट्स को देखते हुए, अगर उससे ज्यादा का कहीं रिजल्ट आ रहा है तो वो एक ओवरफ्लो अकर होता है। सिमिलरली 2-7 करेंगे, ठीक है, तो 2-7 -5 आएगा, ठीक है, और -7 को आप अनसाइंड के अंदर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, हमें इसके लिए साइंड नंबर्स पे जाना पड़ता है। तो हम -7 जो है वो अनसाइंड नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, इसके लिए हमें फिर वही अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट में जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि कहाँ हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट में भी अगर ओवरफ्लो अकर हुआ है तो किस तरह हुआ है। टूज कॉम्प्लीमेंट की हम लोगों ने रेंज पढ़ी है कि टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज अगर 3 बिट नंबर सिस्टम है तो -8 टू +7 है, ठीक है, सॉरी 4 बिट नंबर सिस्टम है। 4 बिट्स के अंदर जो टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज है वो ये है, ठीक है, -8 टू +7। अगर -8 से कम नंबर आता है, मींस -9 आता है, तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट में 4 बिट्स के अंदर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये एक ओवरफ्लो होगा। तो अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें, -5 -3 हमारे पास -8 आ रहा है, अगर हम कैरी को डिस्कार्ड करें तो 100 हमें बता रहा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है कि नेगेटिव नंबर है, और ये -8 को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज में आ रहा था। अगर हम -5 -4 को करें तो अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 10111 आ रहा है। अगर हम कैरी को डिस्कार्ड कर दें तो आपके पास 0111 आ रहा है, जो कि गलत रिजल्ट दे रहा है। एक तो ये जीरो की वजह से आपको लगेगा कि सिस्टम को लगेगा कि ये नंबर पॉजिटिव है, हालांकि ये नंबर नेगेटिव है। तो इस केस में आप देखें -9 जो है वो 4 बिट की रेंज से के पास ज्यादा हो रहा है, ठीक है, -9 आपके पास 4 बिट की रेंज से ज्यादा आ रहा है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल की अगर बात करें, +5 +4 को देखें, +5 +4 हमें +9 देते हैं, और अगर हम इसकी एडिशन करें 4 बिट के अंदर तो आपके पास 1001 आएगा, जबकि 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वैल्यू को। रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव है, आपके पास लास्ट में आपके पास 1 है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे एक और 0 चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ तो मुझे इन नंबर सिस्टम की रेंज बढ़ानी होगी, मुझे नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा करने होंगे, या फिर मुझे रिजल्ट को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है। तो बाइनरी में जब हम कर रहे होते हैं, ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, तो रेंज से ज्यादा अगर मेरे पास रिजल्ट आ रहा है तो वो एक ओवरफ्लो अकर होगा। ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए या तो मैं नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दूं, या फिर मुझे रिजल्ट को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये रेंज एंड ओवरफ्लो आ रहा है। अच्छा, अब रेंज ऑफ बाइनरी नंबर्स देखें तो एक आजकल के सिस्टम जो है, प्रोसेसर्स कैन हैंडल 64 बिट अनसाइंड बाइनरी वैल्यूज, ठीक है। हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम्स है वो मैक्सिमम कौन सा नंबर है जो सिस्टम रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। हम यानी कि मैक्सिमम नंबर आप एक सिस्टम के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम अनसाइंड डेसिमल नंबर अगर 64 बिट की बात करें तो 18.446 इंटू 10⁻18 बनता है। हम हाउ टू रिप्रेजेंट द लार्जर नंबर, हाउ टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल नंबर, इन चीजों पे अगर बात की जाए, ठीक है, तो हम एक सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बहुत छोटा नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी तक जो हमने पढ़े हैं अनसाइंड, साइंड और टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, उनके अंदर सिर्फ हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब अगर फ्रैक्शन पार्ट हो हम उसको कैसे सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब 2 बिट सिस्टम है, उसमें जो मैक्सिमम नंबर है आप जो रिप्रेजेंट कर सकते हो वो 3 है, 1 1 है, ठीक है। अगर साइंड अनसाइंड की फॉर्म में देखें तो आपके पास रेंज चेंज हो जाती है, और स्मॉलेस्ट नंबर आप नेगेटिव में अनसाइंड के केस में 2's कॉम्प्लीमेंट में -8 ले सकते हैं, अनसाइंड के अंदर -7 और अनसाइंड के अंदर 0 आ रहा होता है, ठीक है। मगर अगर हम ये फ्रैक्शन पार्ट को देखें तो हम फ्रैक्शन पार्ट को जो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उनको हम साइंड अनसाइंड और 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है 38 एनसी, एक IEEE का स्टैंडर्ड है 754, जो कि 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए बना हुआ है, ठीक है। 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड है। इसके अंदर जो फर्स्ट बिट होती है वो साइंड बिट है, उसके बाद 8 बिट्स एक्सपोनेंट के लिए हैं और 23 बिट्स आपके पास मेंटीजा पार्ट के लिए है, और 64 बिट डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें 64 बिट आएंगे। 32 बिट्स के अंदर हम लोगों को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और 64 बिट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए हम एक 15 डिजिट डेसिमल नंबर फॉर्मेट की एक एग्जांपल करते हैं। उसी तरह 32 बिट के लिए है, उसी तरह 64 बिट के लिए है, सिर्फ ये साइन एक्सपोनेंट और मेंटीजा, साइन बिट तो एक ही रहती है, एक्सपोनेंट और मेंटीजा की बिट्स इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। मेंटीजा वैसे जो आपको याद होगा कि फ्रैक्शन पार्ट को हम मेंटीजा कहते हैं। 15 बिट डिजिट 15 डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। ये डिजिट है, बिट नहीं है। साइन डिजिट मैंने एक 1 ले लिया, ठीक है। 15 डिजिट्स के अगर देखें तो मैंने एक जो है वो साइन के लिए ले लिया, 2 डिजिट मैंने एक्सपोनेंट ले लिए और 12 डिजिट मैंने मेंटीजा पार्ट को ले लिया। तो मेरे पास एक नंबर है 6918.3125, ठीक है। अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड इसकी देखूं तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ रही है 69183125, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और अभी इसका एक्सपोनेंट कोई नहीं है। अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को 3 इधर मूव करूं तो मैं इसको 6.9183125 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखें तो इसका एक्सपोनेंट 3 आ रहा है, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इस केस में मेरे पास +3 और 6.9183125 आ जाएगा। अगेन इसमें पॉइंट आ रहा है, तो ये टोटली फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। सिस्टम के अंदर इसको रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे होगी, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगी। हम इसको पहले नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब ये होगा कि हम इसमें से पॉइंट को, जो फ्रैक्शन मैग्नीट्यूड है इसकी 6.9183125, इसमें से हम डेसिमल को खत्म कर दें। तो डेसिमल को हम अगर फर्स्ट डिजिट से पहले ले आएंगे तो हमें कितने डिजिट्स पहले लाना पड़ रहा है, 4 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहां से 8 के बाद डेसिमल था, अब 0.6 से पहले है, तो इस वजह से इसका एक्सपोनेंट 10⁻⁴ हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखें तो मेरे पास जो मेंटीजा पार्ट है या मैग्नीट्यूड पार्ट है वो 6918325 है, एक्सपोनेंट मेरे पास 4 है। तो मैं इसको सिस्टम के अंदर 15 डिजिट सिस्टम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। फर्स्ट वन ये साइन बिट आ गया, ठीक है, ये 2 बिट एक्सपोनेंट की आ गई है, और ये मेरे पास मेंटीसा के लिए आ गई है। तो मैंने सिस्टम के अंदर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर आप देखें, ठीक है, 15 डिजिट सिस्टम के अंदर तो मैक्सिमम नंबर आप जो रिप्रेजेंट कर सकते हो वो क्या है। यहाँ पे मैक्सिमम आप 99 तक जा सकते हो, और यहाँ पे भी 9999, यानी 12 नाइन्स, ठीक है, तक जा सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वो ये बनेगा 0.999999 इंटू 10⁻99। अच्छा, अब नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं कर सकते हम इसमें, ठीक है। हम यहाँ पे साइन को नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है, हम -0.99, मगर हम एक्सपोनेंट को माइनस नहीं कर सकते। अब इस सिस्टम में ये थोड़ा सा लैग कर रहा था कि हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट की कोई जगह नहीं आ रही थी।
इस चीज के फिर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हम लोगों ने निकाले। एक ये था कि या तो हम एक्सपोनेंट की फील्ड्स 2 से बढ़ा के 3 कर दें, एक को साइन बिट में कर दें, दूसरे को नेगेटिव के एक साइन बिट हो, बाकी दो डिजिट जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, तो आप +99 से -99 एक्सपोनेंट की वैल्यू लेके जा सकते हैं। अब जो ऑप्शन 2 है हमारे पास, हम उसमें क्या करते हैं कि हम एक्सपोनेंट को पहले अगर देख लेते हैं कि अगर हम ये काम करते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट की हम फील्ड्स को 3 कर देते हैं, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड की फील्ड है वो उसके लिए हमारे पास डिजिट्स कम हो जाएंगे, जिससे जो आपके पास मैक्सिमम नंबर है वो आपके पास बहुत हद तक नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को अगर आप चेंज करो, मैंने आपको पहले बताया था, तो नंबर की वैल्यू में ठीक ठाक फर्क आता है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी नंबर की वैल्यू बता रही होती है। अगर आप 100 देखो, ठीक है, इसको आप चेंज करेंगे जीरो में तो आपके पास पूरा नंबर जीरो हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको 0 से 1 करेंगे तो 1001, इसमें सिर्फ एक डिजिट का फर्क आएगा, मगर अगर आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देख रहे हो तो आपके पास पूरा नंबर ही कहीं शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेंज करने से आपके पास नंबर ऑफ रेंज बहुत घट जाएगी, ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक था। तो जो हम ऑप्शन 2 है हम उसको ज्यादातर यूज करते हैं। हम उसमें क्या कर रहे थे कि हम जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, उसको हम बायस्ड 50 एक्सपोनेंट कर दें। बायस्ड 50 एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि 49 को हम मैक्सिमम की जो एक्सपोनेंट की रेंज है उसको हम +49 से -50 तक ले जाएं, ठीक है। अब इसमें हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, -50 से हम +49 की तरफ जा रहे हैं। अब हम इसमें -50 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसका मतलब यह है कि -50 में हम अगर 50 को ऐड करें तो आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह 49 में अगर आप 50 को ऐड करोगे तो आपके पास 99 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यही 0 to 99 की रेंज में ही आ रहे हैं, मगर हम इसको स्टोर करने से पहले, सिस्टम में स्टोर करने से पहले हम उसके एक्सपोनेंट में 50 को ऐड करके स्टोर करेंगे, ठीक है। उसका मतलब ये हो जाएगा कि 10⁻⁻50 आपको +50 करेंगे तो उसमें 0 आ जाएगा, और 49 +50 करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो इस तरह आप 0 से 99 की जो डिजिट्स हैं दो ही हैं, डिजिट्स आपके पास दो ही हैं, मगर एक्सपोनेंट की रेंज आपके पास अब -50 टू +49 हो गई है, ठीक है। इस तरह हमने एक्सपोनेंट को सिर्फ छेड़ा है, ठीक है। इस केस में, इन केस मेरे पास 10⁻³ है, ठीक है। अब इसको मुझे स्टोर करना है, तो सिस्टम के अंदर मैं क्या करूंगा, -3 + 50। अच्छा, हम बात कर रहे थे, सॉरी एक कॉल था। -3 + 49 करेंगे आप, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 49 - 3 करें तो आपके पास 46 आ रही है, ठीक है। तो 10 अब -3 में आपने +49 करके 46 किया। अब ये जो 46 है ये हम इधर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, 46 और आगे जो भी मेंटीसा का पार्ट होगा। इट मींस कि 46 का मतलब है 10⁻³ तो 10⁻49 से जो पीछे के नंबर होंगे वो आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे, और 49 से प्लस जो 49 है वो उसका मतलब ये होगा, 49 से जो 99 तक नंबर आएंगे वो उसका मतलब है कि वो आपके पास पॉजिटिव नंबर एक्सपोनेंट के लिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। रेंज इसमें डिवाइड हो जाएगी, जाहिर बात है आपके पास रेंज जो है वो कम हो रही है, मगर वो 1 बिट टर्म में कम नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप वैसे अगर 2 डिजिट्स के अंदर में अगर एक यहाँ पे मैं साइन का रख लूँ, यहाँ पे मैं कर लूँ, तो मैं सिर्फ 9 और +9 को रिप्रेजेंट कर सकता था, मींस कि यहाँ पे मेरे पास रेंज 18 बन जाती थी। मगर बायस टेक्निक की वजह से मेरे पास रेंज 0 to 99 ही है, मगर उसमें मैंने जो नंबर है, कुछ नंबर जो हाफ है, तकरीबन 49 जो है वो मेरे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, और 49 मेरे पास और 50 मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं।
ठीक है। इस तरह से बायस जो एक्सपोनेंट की टेक्निक है वो ज्यादा एफिशिएंट है, बजाय इसके कि मैं इसके 3 बिट्स कर दूं। ऑप्शन हमारे पास दोनों है, ये हमारी मर्जी होती है कि हम आर्किटेक्चर बनाते हुए कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में जो मसला था वो ये था कि हम जो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जिसको आप कहते हो, इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था। जीरो को रिप्रेजेंट करने का तो सिंपल पार्ट ये है कि अगर मेरे पास वैल्यू जीरो आ रही है, मेंटीजा जीरो है या एक्सपोनेंट भी जीरो है, तो वो आपके पास जीरो नंबर होगा जो सबसे छोटा नंबर है, और नेगेटिव को भी हमने कर लिया है। तो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने का इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कोई मेथड नहीं था। ठीक है, इस इन्फिनिटी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अगेन दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ठीक है, एक तो ये कि हम इस चीज को अलाउ कर दें कि एक्सपोनेंट 99 को एक्सपोनेंट 99 को हम इन्फिनिटी के लिए रिजर्व कर दें, कि जब भी डिवाइड बाय जीरो कोई आ रही है, कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें डिवाइड बाय जीरो आके इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है सिस्टम, तो हम उसमें जो 99 है उसको हमने इन्फिनिटी के लिए रख दिया। ठीक है, और जीरो को एक्सपोनेंट, जब हमारे पास एक्सपोनेंट कोई जीरो हो जाए तो वो इसका मतलब है कि वैल्यू जीरो है, ये एक्सपोनेंट की बात हो रही है। तो इस केस में आपके पास जो 10⁻48 है वो आपको 98 दे देगा। ठीक है, जो 10 जब ये 99 आ जाएगा तो आपके पास इंफिनिटी कंसिडर होगा एक्सपोनेंट, और जब एक्सपोनेंट आपके पास 10⁻50 है, ठीक है, 10⁻50 है, उसको हम लोग +50 उसमें बाईस को ऐड करें तो आपके पास जीरो आता है, और एक्सपोनेंट जीरो है तो आपके पास वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये एक था। दूसरा ये था कि हम बायस को, जो बायस वैल्यू हमने यहाँ पे 50 रखा हुआ है, उस बायस वैल्यू को 50 की जगह हम 49 कर दें। चीज दोनों में सेम आएगी। जब आप 49 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो 99 और जीरो वाली फील्ड है ये रह जाएंगी। ठीक है, ये जो 99 है वो अगेन इंफिनिटी के लिए रिजर्व हो जाएगा, जीरो जो है वो जीरो के लिए रिजर्व हो जाएगा, और आपके पास 10⁻49 में +49 ऐड करेंगे तो 98 आएगा। तो आप मैक्सिमम 98 तक जा सकते हैं, और -48 में +48 करेंगे तो आपके पास जीरो आ जाएगा, जो जीरो इसके लिए है। तो आप 10⁻48 को आप 1 से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो जीरो एक्सपोनेंट और 99 के लिए हम लोगों ने 99 को इंफिनिटी के लिए रिजर्व कर दिया, एक्सपोनेंट जीरो को जीरो के लिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ रेंज जो है वो इस ये बन गई है कि 10⁻49 तक, और 10⁻48 से 10⁻49 तक हम जा सकते हैं। इसके अंदर 22 ऐड होगा 49, इसमें 22 हमने 50 ही रखा है, मगर हमने ये दो फील्ड्स रिजर्व कर दी हैं। इसमें भी काम वही है, सिर्फ इसमें 22 50 है, इसमें 22 को हमने 49 कर दिया। ठीक है, अब एक सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नंबर देखते हैं कि उसको हम बाइनरी में अगर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं। हमारे पास नंबर वही है 6918.3125। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 1101100001110.0101। ठीक है, 0101 1/2 1/4 1/8 और 1/16 आ रहा है। 1/16 प्लस 1/4 को ऐड करें तो आपके पास 0.3125 आएगा। इसको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, नॉर्मलाइज हमने कैसे कर दिया कि 1.11, और ये जो पॉइंट था इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो आपके पास इंटू 2⁻12। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस आपके पास 2 है। वो डेसिमल नंबर सिस्टम था, उसमें हम लोगों ने बेस 10 रखी थी, इसमें बेस 10 है, इसको हम 10⁻, लिखा था हमने 10⁻⁻4 किया था जब हम पॉइंट इधर लाए थे, और इधर लाए थे तो 10⁻³ लिखा था। यहाँ पे डेसिमल की बेस यूज हो रही थी, और यहाँ पे आपके पास बाइनरी की बेस यूज हो रही है। अच्छा, 2⁻12 का हमने देख लिया। अब इसमें अगर देखें तो साइन बिट हमारे पास क्या पॉजिटिव नंबर है, तो साइन बिट हमारे पास 0 होगी। एक्सपोनेंट क्या है, 12 है, 12 की बाइनरी आपके पास आ रही है 1001111। अच्छा, 12 की बाइनरी जो है मेरे पास वो ये नहीं है, 12 की बाइनरी मेरे पास जो होगी
वो तकरीबन अगर आप इसको करें 12 का निकालें, हम इसका वेट निकाल लें तो मेरे पास 1000 ये 8 है, 10019, 1010, 1011, और 110012। ठीक है, और वेट के हिसाब से देख लें 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, तो 8 प्लस 1 सॉरी 8 प्लस 4 12 होती है। तो 1100 मेरे पास 12 की बाइनरी बनती है, जबकि यहाँ पे तो हम लोगों ने 8 बिट्स रखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हम लोगों ने सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट में हम लोगों ने एक्सपोनेंट के लिए रखे थे, 1 बिट हम लोगों ने साइन में रखा था। अब जो सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो 127 का बाइस वैल्यू यूज करता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, हमने 12 के अंदर 127 को ऐड किया। ये सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट जो फॉर्मेट है ये इसका स्टैंडर्ड है कि इसमें बाइस वैल्यू आपके पास 1 to 7 है। ठीक है, तो हमने 12 के अंदर 1 to 7 ऐड किया तो 139 आ गया। 139 की बाइनरी हमने एक्सपोनेंट वैल्यू में स्टोर कर दिया, और अब मेंटीसा पार्ट में आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी सारी। ठीक है, और जो रिमेनिंग बिट बचेंगे, ठीक है, वो सारे 0 हो रहे हैं। ये वाली वैल्यू सारी आपके पास वही आ गई है ऊपर वाली। ठीक है, और रिमेनिंग जो बिट्स बचे हैं वो सारे 0 हो गए। हिडन 1 का मतलब ये है कि ये जो 1 है, ठीक है, ये एज्यूम किया जाता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, मगर हम सिस्टम के अंदर उसको लिखते नहीं है। जब हम नॉर्मलाइज फॉर्म में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1 इसको हम हाइड कर देते हैं सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन के लिए। मगर जब कभी भी ये फ्लोटिंग पॉइंट इससे दोबारा आपके पास ये नंबर गेट करना होता है तो ये 1 को हम अपेंड कर देते हैं। ठीक है, इस 1 को, हिडन 1 को हम अपेंड करते हैं सिस्टम के अंदर। ये एग्जिस्ट सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, मगर ये अंडरस्टूड है कि जब भी आप मेंटीसा से दोबारा नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 1.11 इंटू 2 रेज टू पावर 139 माइनस 127 नंबर आएगा। ठीक है, तो आपके पास एक्चुअल नंबर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग ये जो हम लोगों ने बात की थी सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, पहले हम डेसिमल में देखते रहे हैं। ठीक है, डेसिमल की एग्जांपल्स हमने देखी, फिर हम ये सिंगल प्रिसीजन जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, ठीक है, इसमें आप देखें साइन बिट 1, एक्सपोनेंट बिट 8 और मेंटीसा के लिए 23। तो ये जो था इसकी ये एग्जांपल है कि आप बाइनरी में किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की। ठीक है, इसके अलावा जो हमने प्रीवियस देखी है, हमारे पास नंबर है प्लस 1.101 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, ये बाइनरी का नंबर है। ठीक है, इसका मतलब है एक्सपोनेंट में हम साइन बिट में हमारे पास 0 होगी, एक्सपोनेंट क्या होगा 5 प्लस 1 to 7 विच गिव्स अस 132। तो 132 की बाइनरी हम एक्सपोनेंट फील्ड में स्टोर करेंगे, और मेंटीसा पार्ट में हमारे पास 101 और बाकी सारे जीरोस आ जाएंगे। सिमिलरली क्योंकि ये नॉर्मलाइज फॉर्म में था तो हमें नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मेरे पास एक नेगेटिव नंबर है -1.01011 इंटू 2 रेज़ टू पावर -126। अगेन हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव है, -126 प्लस 127, तो आपके पास +1 आ गया। ठीक है, तो +1 की बाइनरी हम लोगों ने एक्सपोनेंट में स्टोर कर दी। ठीक है, 1 की बाइनरी हमने एक्सपोनेंट में स्टोर कर दी। नंबर हमारे पास नेगेटिव है तो साइन बिट मेरे पास 1 हो रही है। ठीक है, साइन बिट मेरे पास 1 हो रही है, और इसी तरह मेंटीसा में मेरे पास 01011 आ रहा है। ठीक है, 01011 और रिमेनिंग बिट सारी जीरोस हो रही है। अब अगर मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक्सपोनेंट को 0, एक्सपोनेंट अगर मेरे पास 0 है तो इसका मतलब है कि ये सारा जो नंबर है वो 0 है, उसमें मेंटीसा भी 0 है, साइन बिट भी 0 है, एक्सपोनेंट भी 0 है। ठीक है, और अगर मुझे इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक्सपोनेंट की सारी बिट्स 1 1 1 1 करनी होगी, विच मीन्स कि यहाँ पे 1 to 8 आ रहा है। ठीक है, 1 to 8 का मतलब ये हो गया कि
आप सॉरी 1 to 7 आएगा। 1 to 7 का मतलब ये हो गया कि ये हमने रिजर्व किया हुआ है इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें साइन बिट जीरो कर दे, मेंटीसा सारा जीरो कर दे, अगर इंफिनिटी है तो एक्सपोनेंट में हमारे पास सारे बिट्स 1 हो जाएंगे। इस तरह ये हमारे पास 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था। अगर मुझे इससे भी ज्यादा बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है या बहुत बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम 64 बिट प्रिसीजन पे चले जाते हैं। 64 बिट इससे भी या लॉन्ग फ्लोटिंग पॉइंट आ जाता है, लॉन्ग में आ जाता है, वो 64 बिट्स तक आपको हैंडल कर सकते हैं नंबर्स को। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो बहुत बड़ी बाइनरी की स्ट्रिंग्स को कंपैक्ट फॉर्म में लिखने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, मसलन मेरे पास एक बहुत लंबी बाइनरी कैलकुलेशन है, ठीक है, जिस तरह का नंबर हम लोगों ने पीछे देखे हैं। अगर ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिट का ये नंबर है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं अरिथमेटिक्स परफॉर्म करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास गलती के चांसेस रहता है। अगर मैं इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिख लूं, मैंने यहाँ पे इसको 4 डिजिट्स में लिख लिया है, तो कंपैक्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया है, तो मेरे पास इसको गलती की गुंजाइश इसकी अरिथमेटिक में बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज बेसिकली अ बेस 16 नंबर सिस्टम। वी हैव 16 डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 0 to 9 तक हमारे पास वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं डेसिमल सिस्टम की तरह, और 10 की जगह हमारे पास यहाँ पे A B C D E F आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास 16 डिफरेंट यूनिक पैटर्न्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हम मुख्तलिफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, बाद में एग्जांपल्स भी देखते हैं इसकी कि कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। काउंटिंग इन बाइनरी देखें, 0 to 7 बाइनरी 7 है, 8 9 तक वही है, 9 के बाद डेसिमल का 10 हेक्साडेसिमल का A है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्क है वो ये देखिए, यहाँ पे ये 1 0 के साथ 1 1 के साथ 1 2 के साथ है। ठीक है, मगर ये बेस 10 था डेसिमल, जबकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो बेस 15 है। हमारे पास 10 रिपीट नहीं होता, यानी कि हम 1 0 पे नहीं जा रहे हैं, हम A पे आ रहे हैं। A फिर B फिर C फिर D फिर E फिर F। अब F के बाद आपके पास नंबर चेंज होगा। ठीक है, 16 डेसिमल 16 हेक्साडेसिमल का 10 आ गया, तो रेंज ऑफ नंबर हेक्साडेसिमल की डेसिमल से भी बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी तरह जब मैं 26 तक पहुंचा हूं, ठीक है, डेसिमल का 26 मेरे पास हेक्साडेसिमल का 1A है। ठीक है, इसी तरह जब मैं 20 अगेन आगे काफी आगे जाके मेरे पास ये फिर B1 आएगा, 1B 1C 1D 1E 1F के बाद फिर 2 0 अप टू 27 के बाद 2 8 2 9 और फिर 2A 2B 2C शुरू होगा। तो ये काफी बड़ा नंबर सिस्टम है। अच्छा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बहुत इजी है। ठीक है, इसी तरह हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी बहुत इजी है। मेरे पास एक बाइनरी की स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक बाइनरी की स्ट्रिंग है, मैंने इस स्ट्रिंग को 4 बिट्स में सेपरेट करके लिख लिया। मींस कि ये 0 1 0 0 आ गया, फिर ये 1 0 0 1 आ गया, 1 0 0 1 आ गया, फिर 0 1 0 0 और 1 1 0 1। मींस कि ये मैंने 4 उसमें लिख दिया। ठीक है, अब इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हम डायरेक्ट सम ऑफ वेट से करें तो 2 raised to power 1 2 raised to power 2 4 plus 2 6, तो 6 हेक्साडेसिमल में 6 और डेसिमल का 6 बराबर होता है। ठीक है, 6 आ गया। इसी तरह 2 raised to power 8 2 raised to power 0 यानी 8 2 raised to power 4 सॉरी 3 8 plus 1 9, तो 9 का और उसका सेम ही आता है, डेसिमल का और हेक्साडेसिमल का 9 सेम ही है। ठीक है, तो वो 9 मैंने लिख दिया। अब 1 0 1 1 यहाँ पे क्या है, 8 plus 2
प्लस 1, तो 8 प्लस 2 प्लस 1 मेरे पास क्या आ गया 10 11। अब हेक्साडेसिमल में डेसिमल का 11 जो है वो हेक्साडेसिमल में बी आता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। इसी तरह 0 1 1 0 6 आ रहा है, 6 आ जाएगा। अब 1 1 0 1 क्या है 8 प्लस 4 प्लस 1, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, तो 13 जो है 11 आपके पास बी है। अब मैं वापस जाता हूँ, तो वापस जाके आपको दिखाता हूँ कि जो 13 है, ठीक है, 13 जो है वो मेरे पास डेसिमल का 13 हेक्साडेसिमल का डी होगा, तो मैंने यहाँ पे ये डी लिख दिया। इसका मतलब है D6 B96 की ये हेक्साडेसिमल बनता है और इसकी बाइनरी जो है वो ये है। इसी तरह हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी इजी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैंने 3 की बाइनरी लिख दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 की बाइनरी लिख दी, यहाँ मैंने D की बाइनरी लिख दी और यहाँ मैंने F की बाइनरी लिख दी 1 1 1, तो ये मेरे पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो गए हैं। और अगर मुझे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए एक इनडायरेक्ट मेथड है और दूसरा डायरेक्ट। दूसरा जो मेथड है वो तो रिपीटेड डिवीजन बाय 16 आ रहा है। डेसिमल से आप 16 पे डिवाइड करते जो आपके पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि मैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करूं और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दूं। ये इनडायरेक्ट मेथड है और ये इनडायरेक्ट मेथड काफी इजी मेथड है, ठीक है, क्योंकि बाइनरी की हमारी इतनी एक्सरसाइज होगी है कि हम ये काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए भी मैं पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, बाइनरी से फिर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। ये इनडायरेक्ट मेथड है। और डायरेक्ट मेथड ये है कि मैं सम ऑफ वेट्स जो 16 पावर 0 और 16 पावर 1 16 पावर 2 जो बहुत बड़े बड़े नंबर है मैं उनको ऐड अप करूँ। सम ऑफ वेट्स वाला मेथड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं इस केस में वो ज्यादा इजी हैं, ठीक है, और जल्दी आप कैलकुलेट भी कर लेते हो, तो वो जरा इजी हो जाते हैं मेरे पास, ठीक है। हेक्साडेसिमल की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करें, अच्छा, अगर हम हेक्साडेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इसमें जो कैरी जनरेट होगा और जो हम बोरो करेंगे उसका वेट 16 होगा। मींस कि एक कैरी जब जनरेट होगा तो उसका मतलब है कि वो 16 नंबर आगे आपके पास जा रहा है। इसी तरह आपने बोरो करना है तो बोरो में जिस तरह हम उसमें 1 बोरो करते थे बाइनरी में और डेसिमल में नेक्स्ट बोरो करते तो हम 16 की वैल्यू को हम बोरो करेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। रिपीटेड डिवीजन बाय 16 का मेथड अगर देखें, मेरे पास एक नंबर है 2096 जो हमने पहले पढ़ा है कि अगर हम नंबर को डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में तो कैसे करेंगे। 2096 है डिवाइड बाय 16 131 आ गया, फुली डिवाइड हुआ 0 आ गया। 131 को 16 से डिवाइड किया, क्वोशंट 8 है, रिमाइंडर मेरे पास 3 आ गया। 8 है तो 8 16 डिवाइड तो 0 होगा तो 8 ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 8 का जाहिर बात है आप 16 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे 0 ही लिखना पड़ेगा, 0 आके 16 आएगा और फिर आपके पास 8 ही बचेगा रिमाइंडर में, अगर तो आपके पास 8 ही आ जाता है, ऑल्दो वो -8 होगा मगर हम लोग उसको 8 लेते हैं। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे जो नंबर अगर 16 से लेस आ जाए या बेस से लेस आ जाए वो हम डायरेक्ट इधर लिख देते हैं। तो डेसिमल का 2096 बाइनरी में हेक्साडेसिमल में 038 से रिप्रेजेंट होता है। सम ऑफ वेट की बात करते हैं। सम ऑफ वेट जो मेथड हमने पढ़ा था वो CA02 अगर एक मेरे पास नंबर है, ठीक है, मैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मुझे C इंटू 16 रेज़ टू पावर 3 A इंटू 16 रेज़ टू पावर 2 16 रेज़ टू पावर 1 16 रेज़ टू पावर 0। 16 रेज़ टू पावर 0 तो 1 होता है, उसको हम सिंपली 1 लिख देते हैं। 16 पावर 1 16 आ गया, 16 पावर 2 256 है और 16 पावर 3 4096 है और C की वैल्यू 12 है, A की वैल्यू 10 है, 0 और 2 वैसे ही आ जाएंगे। तो जो आखिर में मेरे पास वैल्यू आएगी उन सबको मैं ऐड अप करूंगा तो 51714 है, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड्स हैं, रिपीटेड डिवीजन और सम ऑफ वेट, और इनडायरेक्ट मेथड्स हमने इससे पहले देख लिए थे। हेक्साडेसिमल एडिशन की बात करें तो अब आप देख रहे हैं हम कैरी 1 जो जनरेट हो रहा है वो कैसे होगा।
अच्छा जी, हेक्साडेसिमल एडिशन में देखें 6 प्लस 5 आपके पास 11 बनता है। 11 डेसिमल जो 11 जो है वो डेसिमल 11 डेसिमल जो हेक्साडेसिमल बनता है वो बी है, तो हम लोगों ने बी लिख दिया। इसी तरह सी प्लस बी सी की वैल्यू आपके पास है 13 और बी की वैल्यू है 12, सॉरी बी की वैल्यू है 11 और सी की वैल्यू है 12, ए की वैल्यू है 10। तो 11 प्लस 12 आपके पास 23 आता है। तो 23 जो डेसिमल है वो हेक्सा में 17 के बराबर है। अब यहाँ पे हमारे पास कैरी जनरेट होगा 1, तो हम लोगों ने 7 यहाँ लिखा और 1 यहाँ कैरी जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे a प्लस 1 प्लस 2 है, a प्लस 1 ये 10 है, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 2 13। तो 13 डेसिमल जो है वो आपके पास हेक्साडेसिमल में d से रिप्रेजेंट होता है, तो हमने यहाँ पे d लिख दिया। इसी तरह 2 प्लस 9 प्लस 2 13 अगेन हाँ d है, ठीक है। अब 9 प्लस 2 आपके पास 11 बनता है। 11 डेसिमल जो है वो आपके पास हेक्साडेसिमल में b के इक्वलेंट है, तो हमने b लिख लिया। इसी तरह 2ac6 प्लस 9 2b5 जो है वो आपके पास bd7b के बराबर बन रहा है। ये सारे जो मैंने साइड पे रफ वर्क किया हुआ है। अब अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो मेरे पास दो नंबर है, ठीक है, 9 2b5 माइनस 2ac6। अब यहाँ पे जो बात हो रही थी ना, वेट 16 होता है जब हम बोरो लेते हैं तो आपके पास वेट 16 होगा। डेसिमल के अंदर आप बोरो लेते हो तो उसका वेट 10 होता है। डेसी बाइनरी के अंदर बोरो लेते हो तो वो वेट 2 होता है। जब आप हेक्साडेसिमल में बोरो लेंगे तो वो वेट 16 होगा। अब 5 में से 6 आप माइनस नहीं कर सकते हैं, 6 बड़ा नंबर है, 5 छोटा नंबर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बोरो लेना है बी से। जब हम बी से बोरो लेंगे, यहाँ पे हमारे पास ए बच गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 16 आ गया। तो 16 प्लस 5 मेरे पास होता है 21। 21 में से मैंने 6 माइनस किया तो मेरे पास 15 डी आएगा। 15 जो डेसिमल है, डी स्टैंड्स फॉर डेसिमल, 15 डेसिमल जो है वो हेक्साडेसिमल में एफ के बराबर आता है, तो मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ए था, ए में से अगेन सी माइनस नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ 2 से एक बोरो लिया, तो a प्लस 16 आ जाएगा मेरे पास। a प्लस 16 होगा जी 10 प्लस 16, मेरे पास 26 होता है। तो 26 में से मैं c की वैल्यू मेरे पास 13 है, 26 में से मैं c की वैल्यू मेरे पास 12 है। बी 11 है, सी 12 है, डी 13 है, तो सी की वैल्यू मेरे पास 12 है। 26 माइनस 12 मेरे पास 14 आ जाता है, ठीक है। तो 14 डेसिमल आता है। 14 डेसिमल को अगर मैं कन्वर्ट करूं हेक्साडेसिमल में तो 14 मेरे पास ई बनेगा, तो मैंने यहाँ पे ई लिख दिया। अब अगेन यहाँ पे मैंने ए के लिए मैंने यहाँ पे बोरो किया था, तो यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो 1 में से मैं ए नहीं निकाल सकता, यहां से मेरे बोरो लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 8 बच जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 16 प्लस 1 आ जाएगा, तो 16 प्लस 1 17 हो गया, ठीक है। 17 में से ए को निकाले तो मेरे पास डेसिमल 7 बचता है, और 7 का डेसिमल मेरे पास हेक्साडेसिमल में भी 7 ही बनता है। और अब मेरे पास यहाँ पे 8 बच गया था, तो 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ रहा है, 6 ही रहता है। तो हेक्साडेसिमल और डेसिमल जब तक 9 तक है तो वो सेम ही है। 9 से ऊपर डेसिमल 10 आपके पास ए में कन्वर्ट होता है, ये हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है चीजों को। तो ये दो एग्जांपल्स थी मेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। आज के लेक्चर के लिए आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम्स को स्टार्ट करेंगे। इन नंबर सिस्टम्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, इनकी कन्वर्जन की, और ये जो हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखी है इसकी। एट द एंड ऑफ द चैप्टर ऑक्टल नंबर सिस्टम के बाद हमारे पास चैप्टर एंड होगा। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपका एक क्विज भी होगा और एक असाइनमेंट भी होगी चैप्टर नंबर 1 की। तो इन चीजों को लाजमन साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप को प्रिपरेशन के लिए उस वक्त टाइम इतना ज्यादा रिक्वायर्ड ना हो। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप लोग इजीली क्विज और असाइनमेंट कर सकोगे। उम्मीद है आप इस लेक्चर से गो थ्रू करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हुए वो इंशाल्लाह हम
फिजिकल सेशन में डिस्कस भी कर लेंगे, और जो कंफ्यूजन होगी वो मैं आपके उधर फिजिकल सेशन में दूर भी कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।